and there are different therapeutic techniques which are being based on classical and operant conditioning, and हम उनकी हेल्प से जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनका हम सोल्यूशन जो है वो कर सकते हैं. So let's have a look on all of them one by one. The things which we are going to cover today is basically all of them are very familiar to you, and classical and operant conditioning and its therapies we will be looking at it. Then the classical conditioning and aversion therapy, then systematic desensitization and flooding, and critical evaluation in flooding, that what could be the negative consequences of flooding. So we will be talking about all of them. Then in operant conditioning we will be looking at token economy, counter conditioning therapy, positive or negative reinforcements, positive and negative punishments, modeling therapy, and biofeedback. So these are the things which are so common, so easy, and so much into practice of psychology that I would like to expect more from you people to give me your feedback for each and everything rather than giving you everything from my side. So be ready to give me different examples for each kind of therapy which we are going to talk about today. So basically the behavior therapy behavior therapy is also called behavior modifications, are based on the theories of classical and operant conditioning. The premise is that all behavior is learned. You all know that behavior is always something which is being learned. Faulty learnings, of course, which is called conditioning, is cause of an abnormal behavior, और वो भी हमने learn की होती हैं. Therefore the individual has to learn the correct or acceptable behavior. So the core point is that since all behaviors are learned as well as the behaviors which are false and negative are being learned, so what we have to do that we have to learn the correct behavior. So an important feature of behavior therapy is to focus on current problems and behaviors and to eradicate those abnormal behaviors and faulty learnings which need to be corrected, right? So I would not go into the detail of classical conditioning, the traditional Pavlov experiment, and all those things, because you all are well aware of that. But the theory of classical conditioning suggests a response is learned and repeated through immediate association. Whether it is a good response or a bad response, it is learned and it is repeated through being immediately associated with something else after repetition. So behavior therapy is based on classical conditioning, which aim to break the association between stimuli and undesired response. For example, it could be any phobic reaction. For example, it could be any undesired behavior which you have learned, or anything else like that. So therapists also use classical conditioning to diminish or eliminate many type of unwanted behavior, and this specifically includes addictive behaviors as well, right? So looking at the aversion therapy is exclusively being used a lot in addictive behaviors. This process pairs undesired behavior with some form of aversive stimuli with the aim of reducing unwanted behavior. Now you have to give me some example for that. The only example I am sharing with you is, for example, alcoholics enjoy going to pubs and consuming large amount of alcohol. तो वहाँ पर क्या होता है, aversion therapy involves associating the pleasure of drinking such things. क्या करते हैं, कोई unpleasant unconditioned stimuli उसके साथ associate कर देते हैं. For example, ये हो सकता है कि जब कोई ड्रिंक करे तो उसके बाद उसको कोई ऐसी एक टैबलेट दे दी जाए जिससे उसको नौजिया होने लग जाए और उसको वॉमिट हो जाए, या जिसके बाद उसको हेडेक शुरू हो जाए, या जिस तरह से इसमें एग्जांपल दी हुई है कि उसके बाद उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है. सो उसके साथ एक इतनी नेगेटिव फीलिंग्स एसोसिएट हो जाती हैं कि थोड़े ही अरसे के बाद वो जो डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है. सो वुड एनीवन वुड लाइक टू गिव मी एनी एग्जांपल फॉर एवर्जन थेरेपी? राइट. ठीक है,
ठीक है, एनीवन एल्स? कोई और बताएगा प्लीज? ओके, सो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। The client thus learned to associate the undesirable behavior with the electric shock, and a link is formed between the undesirable behavior and the reflex response to an electric shock. This is exactly the case how classical conditioning works. और हमें पता है कि जब हम कोई बिहेवियर अनलर्न करना चाह रहे होते हैं या डिमिनिश करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हमें एक लिंक क्रिएट करना पड़ता है बिटवीन द अनवांटेड बिहेवियर एंड द रिस्पॉन्स। तो वो हम इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं। इन केस ऑफ अल्कोहलिज्म, what is often done is to require the client to take a sip of alcohol while under the effect of nausea-inducing drugs. As I told you earlier, sipping the drink is allowed almost at once by vomiting. In future, the smell of alcohol produces a memory of vomiting and should stop the patient's wanting a drink. Right? So यहाँ पर हमने again यही ऑब्जर्व किया कि आपने एक अनप्लेजेंट स्टिमुलाई को डिजायर्ड आपकी जो है वो प्लेजेंट स्टिमुलाई के साथ अटैच कर दिया और फाइनली जो है वो बिहेवियर जो है वो डिमिनिश होने की तरफ चला गया आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग। नाउ लुकिंग एट द क्रिटिकल evaluation or the side effects of that, there are two issues relating to the use of aversion therapy. First, it is not very clear how the shock or drug would have their effects. Like अगर हम लोग कोई भी इस तरह का अनप्लेजेंट स्टिमुलाई यूज़ कर रहे हैं तो उसके अदर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं दे आर स्टिल अननोन कि वो क्या उस क्लाइंट के ऊपर इफेक्ट कर रहे होंगे। इट मे बी दैट they make the previously attractive stimuli, that is sight, smell and taste of alcohol aversive, or it may be that they inhibit or reduce the behavior of thinking. यानी कि ये भी हमें थोड़ा सा नहीं पता होता कि जो उनके पहले के जो उनके ऑलरेडी बैड बिहेवियर्स लाइन के होते हैं, यानी कि जो उनके प्रीवियस अट्रैक्टिव स्टिमुलाई होते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गई या कोई और ऐसी चीज़ हो गई, तो वो हमें कंफर्म नहीं होता कि इसी की वजह से वो इनहिबिट करें या वो किसी और रीज़न से इनहिबिट करें। सेकेंडली, देयर आर डाउट्स अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस ऑफ एवर्जन थेरेपी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी होते हैं विच आर बीइंग into consideration when we use any such kind of therapies. So it can have the dramatic effects in therapist office, और हमें कई दफ़ा बहुत सारा इसका नेगेटिव फीडबैक भी मिल सकता है कि एवर्जन थेरेपी जो थी उसने आपके शायद डिज़ायर्ड गोल्स को प्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन शायद उसके साथ आपको कुछ और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। जैसे मे बी कोई क्लाइंट एक इसी तरह एक रियल लाइफ एग्जांपल में एक केस काफ़ी डिस्कस होता है कि वो नोजिया इंड्यूसिंग जो है वो टैबलेट्स देने की वजह से एक क्लाइंट जो था उसको मीग्रेन जो थी वो उसको डेवलप हो गई, राइट। सो एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ एवर्जन थेरेपी एज वेल एज फ्लडिंग और बाकी जिनकी हम बात करेंगे दे आर स्टिल देयर, राइट। So looking at to the flooding as also known as implosive therapy, it works by exposing the patient directly to their worst fears. Like अगर हम कहते हैं कि अगर किसी को हाइट का फोबिया है तो इसको एक एक्सट्रीम हाइट पे ले जाकर वो एक्सपोजर दे दिया जाए फ्लडिंग का, ठीक है। और जैसे अगर कोई क्लास्ट्रोफोबिक है तो उसको किसी क्लॉजेट के अंदर 4 घंटों के लिए बंद कर दिया जाए। पर्पस ये होता है कि जो इंडिविजुअल है उसका एक बहुत ज़्यादा हाई जाएगा फियर, और फिर वो एक टाइम के बाद उसका वो पाउंडिंग हार्ट, उसकी नर्वसनेस, उसकी एग्जाइटी वो खुद ब खुद नीचे आनी शुरू हो जाएगी एंड ही विल गेट टू नो कि कुछ भी नहीं हुआ, ये तो मेरा इरेशनल फियर था। बट इसमें भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनकी भी हम बात करते हैं। अनलाइक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन विच में यूज़ इन विट्रो और विजुअल एक्सपोजर, और जिसमें हम ग्रेजुअली जो है वो एक हिरार्की डेवलप करते हैं और वी एक्सपोज द क्लाइंट फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर फॉर अनदर। फ्लडिंग में आप डायरेक्ट एक्सपोजर दे देते हैं, जैसे अगर किसी को स्नेक का फोबिया है तो उसके सामने लाकर स्नेक रख दिया, ठीक है। अगर किसी को ब्लड का फोबिया है तो उसको जो है उसके हाथों पर या उसके कपड़ों पर ब्लड लगा दिया। सो ये डायरेक्ट एक्सपोजर जो है वो फ्लडिंग की टेक्निक में यूज़ होता है। एंड बेसिकली उसका रैशनल ये होता है कि फियर जो होता है हमारा या उसके साथ एसोसिएटेड जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होती हैं वो एक हमारी टाइम लिमिटेड रिस्पॉन्स होती हैं। सो एट फर्स्ट जो बंदा है या जो इंडिविजुअल है उसको बहुत एक्सट्रीम एग्जाइटी होती है, पैनिक्स होती हैं, एग्जॉशन उसकी
आती है, जिसे हम जिस स्टेज को हम कहते हैं, और फिर उसके बाद उसके एग्जाइटी लेवल्स जो होते हैं वो फुली पीक पे जाने के बाद वो डाउन जाना शुरू हो जाते हैं. सो प्रोलॉन्ग इंटेंस एक्सपोजर इवेंचुअली क्रिएट्स अ न्यू एसोसिएशन बिटवीन द फियर्ड ऑब्जेक्ट एंड समथिंग पॉजिटिव, दैट इज सेंस ऑफ कामनेस एंड लैक ऑफ एग्जाइटी. और फिर एक री इन्फोर्समेंट होती है आपको कि आप उन बिहेवियर्स को ईजिली हैंडल कर सकते हैं जो आपके लिए पहले जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं. बट थिंग इज दैट सिंस यू नो दैट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सो एट टाइम्स इट डिड नॉट वर्क. जैसे हम कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स कहते हैं कि हमने लाइफ में ये चीज़ कभी फेस नहीं की थी, लेकिन वंस वी फेस दैट अब हमें कोई डर नहीं लगता. आई एम श्योर यू हैव हर्ड सच काइंड ऑफ नैरेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल. अब ये सिचुएशन हर एक के लिए, हर तरह के लिए एक जैसी नहीं होती. एट टाइम्स सम पीपल डू फेस अनयूजुअल सिचुएशंस विच दे रियली डोंट वांट टू सी, लेकिन वो कहते हैं कि उसके बाद हम शैटर हो गए, हम अब दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं देख सकते. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. So talking about the critical evaluation in flooding, before going into that, can you give me any example in which any of you have exposed the condition of flooding with you? कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कोई ऐसी चीज़? जी रबिया. अच्छा, एट टाइम्स ऐसा होता है, यू आर वेरी मच राइट, कि हमारे इर्द गिर्द जो डिफरेंट तरह की एग्जाइटीज़ हमें एक्सपोजर हो रहा होता है, जिनसे हम उन पर कंटिन्यूसली सबलिमिनल लेवल पर काम भी कर रहे होते हैं और ग्रेजुअली हम उनको ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं और हम कर भी लेते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक मैं जब छोटी थी तो आई वॉज रियली रियली अफ्रेड ऑफ कैट्स एंड डॉग्स. और मेरे अगर कोई करीब से क्या लाइक मुझे से मैं करीब अब कह रही हूँ, वो उस वक्त मेरा करीब ये था, मेरी करीब की परसेप्शन ये थी कि अगर वो मुझे 10 फुट के फासले पे होता था ना तो मेरी जान निकल जाती थी कि ये एक कुत्ता या बिल्ली क्यों मेरे करीब से गुजर है. मेरा करीब भी 10 फीट डिस्टेंस पे होता था. लेकिन मैंने ग्रेजुअली इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काम किया, इनिशियली विद कैट्स और फिर देन डॉग्स. तो मुझे थोड़ा सा मैंने अपने आप को ये नहीं कि रियलाइज़ कराना शुरू किया कि मतलब वो मुझे क्या कर लेंगे या मुझे क्या नुकसान दे देंगे या इस तरह. तो मैंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को ना ग्रेजुअली, जिस तरह सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस होता है, मैंने अपने आप को करीब 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 करने की कोशिश की. और फिर ये कि फॉर्चुनेटली आई हैव चिल्ड्रन हु आर एनिमल लवर, तो उनको बहुत ज़्यादा चूँकि मोहब्बत है और वो बहुत ज़्यादा रेस्क्यू भी करते हैं, उनको देखते भी हैं. सो आई यू नो एज अ मदर बिकम मोर क्लोज टू दैट फिनोमिना. और फिर फाइनली ये कि मैंने इतना है कि एक बिल्ली जो थी जिसकी बिल्कुल डेथ हो रही थी, तो मेरी बेटी ने उसको ड्रॉपर से पानी और इस तरह की चीज़ें, दूध वगैरह पिलाया. तो व्हेन शी डाइड इट वाज मिडल ऑफ अ नाइट, लाइक 2 बजे का रात का वक्त था और हमारे घर के वो पोर्च में थी बिल्ली. तो फिर वो व्हेन शी डाइड तो मेरी बेटी जो थी वो बहुत डिस्टर्ब थी, शी वाज क्राइंग. इट वॉज लाइक अ फ्लडिंग एक्सपीरियंस टू मी कि मैंने फिर एक कपड़े पे उसको लिटाया हुआ था, वो कपड़ा मैंने उठाया अपने हाथ से एंड देन आई वेंट आउट टू बरी दैट कैट, राइट. सो वो जब मैंने उठाया तो मुझे लगा कि मैं मतलब जितना समझ रही थी मैं मुश्किल है, ये उतना मुश्किल नहीं है. बट एट दैट टाइम्स द पेन एंड ग्रीफ और वो फीलिंग्स मुझ पर ज़्यादा ओवरकम हो गई, बिकॉज दैट कैट वॉज कमिंग टू आवर हाउस फॉर लास्ट लाइक 1 ईयर और वो डेली उसको बच्चे फीड करते थे और वो उसको खेलते थे उसके साथ. तो मैं उसको रोज़ देखती थी. वो किसी ऊंची जगह से गिरी थी और गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी. तो मतलब वो ये कि आप अपना ग्रेजुअली जो है वो उन चीज़ों को करते हैं. अनदर एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज़ विद लेज़र. वंस आई वॉज ड्राइविंग माई कार, तो मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लिजर्ड आ गई. वो कहीं कोई शीशा खुला था या दरवाज़ा, तो समहाउ शी केम इन और वो गाड़ी में कहीं छुपी हुई थी. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग तो वो मेरी डैशबोर्ड पर आ गई. इट वॉज अ हाइट ऑफ स्ट्रेस टू मी कि मैं मतलब लाइक इतने क्लोज
लाइक दे वर माई हैंड्स, और वो थोड़ा आगे डिस्टेंस पे थी, तो इट वॉज एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग फॉर मी टू बियर दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज, एंड आई वॉज इन द मिडल ऑफ द रोड विद फुल स्पीड, और मैं गाड़ी रोक भी नहीं सकती थी. सो आई was initially my panic and stress went to 100 plus level, and I was just like, you know, about to shout, but फिर मैं थी भी अकेली. then I realized that एक छोटी सी लेजर है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है, what maximum she can do. so the only fear which came into my mind that she can bite me. तो मैंने कहा कि नहीं, इसको मैंने बस काटने नहीं देना, बट मैंने थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं कैसे, फिर मैंने ग्रेजुअली अपनी गाड़ी साइड पे की, फिर मैंने अपने शीशे खोले, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा ज़रा हिलाया जुलाया, और लाइक आई मैनेज टू डू समथिंग, बट वो गाड़ी में कहीं दोबारा छुप गई. एंड देन आई गेव दैट फीलिंग टू माई सेल्फ, मैंने खुद को ये रियलाइज़ करवाया कि वो इतनी डरपोक है कि वो मुझसे छुप कर गाड़ी में कहीं छुप गई है, तो अनटिल एंड अनलेस आई विल बी रीचिंग समवेयर ये बाहर नहीं निकलेगी. लेकिन उसके बाद भी बहुत दिन तक जब मैं गाड़ी में बैठती थी तो मुझे लगता था कि कहीं ये आ सकती है. तो वो ग्रेजुअली यू नो वो दैट एक्सपोजर हेल्प्स यू कि कोई ऐसी भी चीज़ नहीं हुई है कि जिसमें आप ये समझो कि बहुत कोई अनयूजुअल बात हो गई और आप उससे बाहर जो है वो नहीं निकल सकते. ठीक है, राइट. सो ऑल इट सीम्स टू बी वेरी स्कैरी. सो जी 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 हाँ बिल्कुल. सुना. और अभी आपको वजह की बात बताओ, अभी पिछले कोई 3-4 दिन पहले, आई डोंट नो, ये बहुत पुरानी बात है, बिकॉज आई एम ड्राइविंग फॉर ऑलमोस्ट लाइक आई वॉज 16 व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग, राइट. सो अब सोच लो कि मेरे काफ़ी साल, बहुत साल हो गए हैं मुझे गाड़ी चलाते हुए. सो मैंने बल्कि आई वॉज लाइक 14 और 15 में भी व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग. तो ये मेरे शुरू के टाइम की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो ये तब की बात है, मेरे साथ हुआ था. तो अभी मैं इतने सालों के बाद, मैं अभी कोई 2-3 दिन पहले अचानक से आई वॉज ड्राइविंग द कार, और मुझे ख्याल उसी का ही आया. मैंने कहा व्हाट इफ अगर अब मेरे सामने अपीयर हो जाए. तो मेरे दिल ने मुझे कहा कि आप ना कुछ भी नहीं होगा, आने दो उसको सामने, वो कुछ भी नहीं करेगी तुम्हारा. तो वो लाइक वही है कि रैशनलाइजेशन, और वो फिर आप अपने आप को खुद ही कर लेते हैं. सो बेसिकली talking about the critical evaluation of flooding, flooding is rarely used, and if you are not careful it can be dangerous. like अगर हम किसी इंडिविजुअल की टोटल वैल्यूएशन के बगैर हम उसको जो है वो फ्लडिंग की सिचुएशन में डाल देते हैं, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा एग्जाइटी का लेवल हाई चला जाता है, ही मे गो इनटू कार्डियक अरेस्ट. हमें पहले उस किसी की हेल्थ, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन देखकर फिर हमें उसके साथ फ्लडिंग की टेक्निक यूज़ करनी है. और इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर एवरी फोबिया. लाइक अगर आप किसी की गोद में स्नेक डाल दें, तो स्नेक इज़ समथिंग जिससे बहुत सारे नॉर्मल लोग भी फोबिक होते हैं, मतलब फियर होता है, फोबिक नहीं होते. लेकिन अगर आप, क्योंकि उसके डेंजर्स, उसके हार्म भी है ना उसके साथ अटैच, एक खौफ की और फियर की एक नेचुरल कंडीशन भी है. तो ये नहीं कि आप जैसे अगर कोई कब्रिस्तान जाने से डरता है तो उसको जाके कब्र में बंद कर आए तो उसका वैसे ही हार्ट अटैक हो जाए. तो यू नो वी हैव टू स्मार्टली सी दैट इन व्हाट सिचुएशन एंड फॉर व्हाट फोबिया वी कैन यूज व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर सिचुएशन में से यूज़ कर सकें. So Volpe reported that the case of client whose anxiety intensified to such a degree that flooding therapy resulted in her being hospitalized. So as I told you, ये ना हो कि किसी को उसका ऐसा साइड इफेक्ट हो जाए कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए, right? Also, some people will not be able to tolerate the high level of anxiety induced by the therapy, as we just discussed, and are therefore at risk of exiting the therapy before they are calm and relaxed. तो अगर वो in the middle ही कहीं छोड़कर चले जाते हैं और थेरेपी भी कंप्लीट नहीं होती, तो एक नया कॉम्प्लिकेशन, एक नई प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो जाएगी, which would be very difficult to handle. However, one application is with people who have a fear of water. They are forced to swim out of their depth. It is also sometimes used with agoraphobia. तो लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए पहले कि आप सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक यूज़ करें. फ्लडिंग की टेक्निक बड़े कम स्पेसिफिक सिचुएशंस में विद द कंसेंट ऑफ क्लाइंट यूज़ की जाती है. ऐसे नहीं होती कि हम हर सिचुएशन में हम फ्लडिंग की टेक्निक यूज़ कर लें, और इंटेंसिटी भी देखनी पड़ती है हमें कि कितनी ज़्यादा है किसी चीज़ की.
Then looking at the technique of systematic desensitization, I don't think so that again I have to go into its detail. All of us know that we have to remove the fear in response of phobia, and relaxation responses provide करने होते हैं to the conditioned stimuli, and gradually हम लोग counter conditioning use करते हैं. We have talked about systematic desensitization and many different forums and its phases, so I'm not going to go into its detail. कि डीप मसल रिलैक्सेशन चाहिए होती है, आपने कंट्रोल करना होता है अपनी ब्रीथिंग पे, मसल की डी टेंशनिंग के ऊपर, और मेडिटेट करना होता है, और इसी तरीके से हम हिरार्की वाइज अपने जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं. इसलिए अभी मैं इसकी बात नहीं करी बिकॉज वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू. हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पे जंप करेंगे बिकॉज इट्स अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर. So there are many therapeutic techniques which are being based on the principle of operant conditioning, and I would like to talk about them. The first one, the very famous one and very much into practice, which is used with the patient of schizophrenia largely in Fountain House and otherwise in the whole world, is token economy. Can anyone tell me anything about token economy? So far you have no? कोई बताएगा मुझे टोकन इकोनॉमी के बारे में? जी रबिया. ठीक है, राइट. कोई और भी कुछ बात करना चाह रहा था? हाँ जी, कोई और बच्चा भी कुछ कहना चाह रहा था शायद. यही बात करना चाह रहे थे आप भी. ठीक हो गया, सही. ओके ओके, ठीक है. अच्छा, सो बेसिकली टोकन इकोनॉमी आप सबको पता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो टारगेट करा होता है हमारे बिहेवियर्स को, जो री-इन्फोर्स होते हैं विद सर्टन टोकन्स. लाइक अगर आपने किसी को कुछ भी टास्क असाइन किए हैं और उसने फुलफिल किए हैं तो आपने उसको वो टोकन दे दिया, और वो टोकन जो है दे कैन बी लेटर एक्सचेंज फॉर रिवॉर्ड्स, और वो बेसिकली फिर आपके बिहेवियर को री-इन्फोर्स करते रहते हैं. सो टोकन जो है कैन बी यूज इन फॉर्म टोकन कैन बी यूज इन फॉर्म ऑफ फेक मनी हो सकते हैं. कोई आप चिप्स बना के दे सकते हो उनको, कोई बटन्स हो सकते हैं, पोकर्स, कुछ भी हो सकता है. इसमें आपको कोई वो मतलब फिक्स नहीं है कि आपके टोकन्स किस तरीके से यूज होंगे. सो बेसिकली आप, और जो री-इन्फोर्सर्स हैं या रिवॉर्ड्स हैं वो भी कुछ भी हो सकते हैं इसके रिटर्न में. मतलब टीचर्स कैन यूज टोकन इकोनॉमी एट प्राइमरी स्कूल बाय गिविंग यंग चिल्ड्रन स्टिकर्स टू रिवॉर्ड गुड बिहेवियर. कभी टीचर्स फेस पे स्टार भी बना देते हैं, तो वो भी आपके लिए एक टोकन इकोनॉमी होती है. काउंटर कंडीशनिंग थेरेपी. इन काउंटर कंडीशनिंग अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन स्टिमुलाई इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू रिस्पॉन्स. दिस न्यू रिस्पॉन्स इज सपोज टू डिटेल द पर्सन फ्रॉम द स्टिमुलाई. लाइक अगर हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत उसकी जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स स्मोकिंग, थ्रू अ बिहेवियर थेरेपी टेक्निक दे वुड लर्न टू फील नेगेटिवली अबाउट देयर स्मोकिंग. सो हमने बेसिकली एक जो उसकी फीलिंग थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया उसकी दूसरी फीलिंग के साथ. सो ये भी हम इसी तरह से लर्न करवाते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. इसके लिए हम एक अवर्जन यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए भी हम सिस्टमैटिक सेंसिटाइजेशन यूज़ कर सकते हैं. अवर्जन में क्या होता है कि द क्लाइंट इज टॉट टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई विद द एम दैट क्लाइंट विल इवेंचुअली फील रिपेल्ड बाय द स्टिमुलाई. वर्जन थेरेपी जो है ये बड़ी कॉमन है. इसके कोई टेक्निक मुझे शेयर करना चाहेगा कि इसमें हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं? कोई एग्जांपल इसकी देगा हम मुझे? अवर्जन थेरेपी की कोई एग्जांपल मुझे देगा? ठीक है.
हाँ, बेसिकली वर्जन थेरेपी के ऊपर वर्ल्ड वाइडली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, लेकिन ये अभी भी ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, और इसके अंदर स्पेशली एडिक्शन के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें टेक्निक में यूज़ होता है ये शॉक का सिस्टम। लेकिन ये नेल बाइटिंग के लिए भी यूज़ हो रही होती है, स्मोकिंग के लिए यूज़ हो रही होती है, अल्कोहल के लिए यूज़ हो रही होती है, वेट इश्यूज़ में इसको यूज़ करते हैं, गैम्बलिंग एडिक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अभी शायद कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, हम पहले उसकी बात सुन लें वो क्या बता रहा है। जी। बेसिकली एवर्जन थेरेपी का कॉन्सेप्ट ये है दैट इट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ सम अनप्लेजेंट एलिमेंट इनटू द प्रोसेस। वो अनप्लेजेंट एलिमेंट जो है वो पनिशमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी चीज़ की कोई और नया बिहेवियर इंट्रोड्यूस करने की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि जैसे किसी चीज़ से उसको इनकन्वीनियंस हो रही हो, वो इनकन्वीनियंस इंट्रोड्यूस करने से भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा जो शॉक थेरेपी की बात करते हैं, क्योंकि उसमें एक अनप्लेजेंट स्टिमुलाई हम इंट्रोड्यूस करा दें, लेकिन वो अनप्लेजेंट स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ सम ड्रग हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ सम स्लैप हो सकता है, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, सो एनी अदर थिंग अबाउट दिस जो कोई भी कुछ कहना चाहे। हाँ, ये और अक्सर हमारे घरों में अभी भी वो पुराने कॉन्सेप्ट यही है कि वो जहाँ से कोई मिट्टी खा रहा है वहाँ पे कोई मिर्चें डाल दो या इस तरह की चीज़ें डाल दो, तो उससे जो है वो आपका ये जो बिहेवियर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो दैट्स करेक्ट। अच्छा, फिर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की हम ऑलरेडी जो है वो बात कर चुके हैं, और अब हम लेट मी सी हाउ मच वी आर लेफ्ट विद बिकॉज द टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट। 5 मिनट्स हैं हमारे पास। चले, ऑफरेट कंडीशनिंग जो है इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस दैट अटेम्प्ट टू मॉडिफाई बिहेवियर थ्रू द यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें पहली एग्जांपल ये कि पेरेंट्स रिवॉर्डिंग अ चाइल्ड एक्सीलेंट ग्रेड विद कैंडी और सम अदर सरप्राइज। सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड। स्कूल टीचर अवार्ड्स पॉइंट्स टू दोज स्टूडेंट्स हु आर द मोस्ट calm and well behaved. Students eventually realize that when they voluntarily become quieter and better behaved, that they earn more points. तो ये तो सिंपल चीज़ है कि हमें पता है कि रिवॉर्ड बेस्ड आपकी जो है वो परफॉर्मेंस है, और वो ऑफरेंट कंडीशनिंग पे होती है। इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्सर्स होते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स आर दोज फेवरेबल इवेंट्स और आउटकम्स दैट आर गिवन टू इंडिविजुअल आफ्टर द डिजायर्ड बिहेवियर। दिस मे कम इन फॉर्म ऑफ प्रेज एंड रिवॉर्ड एक्सेट्रा। और नेगेटिव reinforcers are typically those who are characterized by the removal of an undesired or unpleasant outcome after the desired behavior, right? A response is strengthened at something considered as negative is being removed. So negative reinforcers की कोई एग्जाम्पल मुझे देगा? दोनों का पर्पस यही है, जब हम reinforcement की बात करें दोनों का पर्पस यही है कि behavior have to be increased और behavior have to be strengthened। लेकिन नेगेटिव reinforcement क्या होगी? कोई एग्जाम्पल देगा मुझे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। और अब मुझे प्लीज़ कोई क्लास में बाकी लोग भी बोलें, बाकी सब लोग कहाँ पर गुम हैं, ये अपने वीडियोस बंद करके कहीं चले तो नहीं गए हुए? ये कौन सा प्यारा बच्चा बात कर रहा है?
ठीक है, जब गूगल पे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल सर्च करते हैं ना, सबसे पहले यही एग्जांपल आती है, बॉल वाली, क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर। बट दिस इज करेक्ट। अच्छा, अच्छा, मुझे एक मशवरा दें, अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, ये क्लास हो जाएगी ख़त्म। अभी हमारे पास एक दो बातें और हैं करने के लिए, तो अब हम क्या करें, दोबारा कनेक्ट करें क्लास को, या जब बंद हो जाएगी क्लास तो फिर हम दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, आप समझ आना कि दोबारा लॉग इन होना है, ठीक है? चलें, ठीक है जी। हाँ। हम्म। और और स्कूल में टीचर्स ये बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये बहुत बुरी टेक्निक है, जिससे जो बेचारा बोल रहा होता है वो बहुत सफ़र होता है। हाँ। हम्म। ठीक, ठीक है, सो ठीक है, राइट। So looking at the positive and negative punishment. Punishment is always, when increase the something of undesired attempts to cause decrease in a behavior. Punishment का मकसद हमेशा behavior को weak करना है, behavior को decrease करना है। Positive punishment क्या होती है? is when unfavorable event or outcome are given in order to weaken the response. जब पॉजिटिव का मतलब है आप कुछ ऐड कर रहे हैं सिचुएशन में, लेकिन पनिशमेंट का मतलब है आप बिहेवियर को वीक कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से वो बिहेवियर वीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल देना चाहेगा इसकी मुझे, पॉजिटिव पनिशमेंट की? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या जैसे एक बच्चा है, उसको आपने एक थप्पड़ लगाया, उसको आपने स्लैप किया, ठीक है, और आपने उसको स्लैप किया ताकि वो जो है, ये जूम का बहुत प्रॉब्लम है कि ये 40 मिनट्स के बाद बंद हो जाता। बड़ा अच्छा म्यूजिक आ रहा है भाई पीछे से।
आपको यहाँ से सबको म्यूट ऑल कर रही हूँ और आपको जब बोलना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Okay, so people are joining us. We have 24 participants. बाकी भी आ जाएं जल्दी से ताकि हम अपना रैप अप करें, इसको ख़त्म करें लेक्चर को। इसीलिए कहते हैं सवाल करते रहना चाहिए। हाँ, अच्छा जी, 27 पार्टिसिपेंट्स होने लगे हैं हमारे। ओके जी, सो अब हम जो है वो अपनी बात करते हैं बाकी की। चले जी, so we were talking about that there you go, ठीक है जी। so we were talking about the positive and negative punishment और हम ये बात कर रहे थे कि negative punishment में हमारा objective जो होता है वो हमेशा behavior को decrease करना होता है, strengthen करना नहीं होता। so when we look at the modeling therapy is something in which the clients are asked to observe persons coping effectively in the situation that they find anxiety provoking, right? So if there are certain situations which are anxiety provoking, so उसके अंदर जो है वो clients को जो है वो cope करना सिखाया जाता है कि वो किस तरीके से उसके अंदर जो है वो effectively perform कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मेरे मैकेनिज्म में कुछ इशू आ रहा है यहाँ पर सेटिंग में जी। So we were talking about the modeling therapy that in which client is being asked to observe that how he can cope effectively in this situation in which he find that anxiety is being there. So this therapy is based on the work of Albert Bandura और एल्बर्ट वेंटूरा की हमने मॉडलिंग थेरेपी की बड़ी डिटेल में अभी हमने कुछ क्लासेस पहले बात की है। इट इज बेसिक प्रिंसिपल इज दैट पर्सन कैन बी चेंज बाय सिंपली वॉचिंग द मॉडल ऑफ अदर पीपल and they can successfully cope with the problems they are facing. So people have been helped to overcome such things like उनके phobias हैं, उनके unpleasant behaviors हैं, उनके sexual dysfunctions हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो थ्रू मॉडलिंग थेरेपी जो है वो सीख सकते हैं और अब उनको परफॉर्म करके अपने आप को एक बेटर इंडिविजुअल जो है वो बना सकते हैं। Then biofeedback therapy, we have already talked about biofeedback technique in the earlier classes. That biofeedback is something which involves a bodily function such as heart rate or muscle tension which is being monitored and information is being fed back to the client, right? So हमारा इसमें जो complete purpose होता है वो ये होता है कि हम सारे जो भी हमारे इर्द गिर्द सिचुएशन में हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है उसमें हम ये देखें कि अगर हमारा हार्ट रेट किसी सिचुएशन में तेज़ है या किसी सिचुएशन में हमें मसल्स जो हैं वो स्ट्रेस कर रहे हैं या पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसमें आपको जो है वो हेल्प करता है बायोफीडबैक टूल कि आप उसको रियलाइज करें और फिर उस एंजाइटीज़ के ऊपर वर्क करें। सो थ्रू दिस प्रोसेस द क्लाइंट बिकम्स बेटर एबल टू कंट्रोल द फंक्शन एंड उसका जो भी इश्यूज हैं वो अपने इस फीडबैक के थ्रू वो कंट्रोल कर सकता है। ओके,
So this is something related to ऑफरेंट कंडीशनिंग, जिसमें बायो फीडबैक की बात की, मॉडलिंग की हमने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, एवर्जन थेरेपी की, और टोकन इकोनॉमी की। इसी तरह हम जब जो है वो अवर्जन और फ्लडिंग की भी हमने बात की कि ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये सब डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो डिफरेंट सिनेरियोज में हम यूज़ करते हैं। और इस हवाले से अभी अगर कोई बात आप करना चाहते हैं तो अब आपके पास टाइम है कि हम उन्हें